ओके, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। और आज वापस से चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर। और इसकी क्लास सेकंड हम लेने जा रहे हैं। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है? Yes, sir. अनविता, कैन यू बी ए बिट लाउडर बेटा? Yes, sir. बिकॉज यू आर हार्डली हर्ड टू मी। Sir, विहान, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? Yes, sir. So today is the second class for linear equation in two variable. In the last class, we learned about some of the basic concepts. Okay, so let's start with Vihan. बताओ बेटा, last class में what was the first topic that we have discussed? Operations, We discussed on operations. Okay. equations, नहीं नहीं नहीं, एक एक करके. Okay, Anvita, you tell me what was the second topic that we discussed in the last class? sir, equations. Equations. I think that we first operated on operations rather than going equations. We did expressions. Oh, sir, I did not have to say it in order. Okay, you don't remember in the order. That's okay. So Daksh has also joined. Okay, what is the third topic that we discussed about? Variables. You remember what are variables? What is the fourth Sir, topic that we yes, discussed? Please write it down. constant, coefficient. हाँ, मेरे साथ लिखते जाओ, प्लीज लिखते जाओ मेरे साथ. हाय दक्ष, कोफिशिएंट के बाद व्हाट वाज द नेक्स्ट टॉपिक? constants, वेरी गुड. उसके बाद क्या था? Um, polynomials. पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट वेरिएंट्स बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. Number of terms and degrees. वेरी गुड. और क्या था? डिग्रीज ऑफ ए पॉलिनोमियल. हाय दक्ष. तो इतनी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी. और हमने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू यूज एडिटिव इनवर्स, हाउ टू यूज मल्टीप्लिकेटिव inverse, in solving what? In solving the value of x, okay, एक बार फिर से हम चलते हैं, सभी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. सो expression is the operation on a variable. Expression is defined as, let us discuss every topic in a quick session. So what is an expression? Tell me, what is an expression? Please speak out. Sir, it's an operation on a variable. Write it also. It's an operation on a variable. Give me one example. sir, like x plus 1, Very good. What kind of expression is this? Tell me. Daksh, linear है कि binomial है, क्या है? binomial है sir, बाइनोमियल है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या नाम होगा इसका? क्योंकि दो टर्म से तो बाइनोमियल है. डिग्री के आधार पे क्या बोलेंगे? लीनियर. Linear. क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 1. सो एक्सप्रेशन वी ऑल नो. ओके, आई एम राइटिंग एन एक्सप्रेशन 2x plus 3. What is the coefficient of x? Tell me. 2. Very good. Coefficient is 2. What is constant in this variable? 3. Sir, 3. इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है? 3. ओके, हाउ Three. मेनी टर्म्स आर देयर? टेल मी. Sir, 2, sir. व्हाट आर Two those terms. two terms? One is 2x. 2x one and is 3. 3, वेरी गुड. तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता चल गए. और मैंने आपको बताया था यू कैन ऐड लाइक टर्म्स. यू कैन ओनली ऐड लाइक टर्म्स. यू रिमेंबर दिस? yes sir, ओके. Yes, sir. ओके, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल भी हो गया और डिग्री भी हो गई. नाउ कमिंग टू द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन. सो मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x plus 3 एट x इज इक्वल टू 7?
x plus 3 and x equals to 7. Sir, 17. Very good. 17, So sir. it is 2 into 7 plus 3, which is equal to 17. Wonderful. So now we will today learn. Okay, उसके पहले we will revise some more concepts. So concepts क्या थे वो? If what are the statements that we write for a particular, suppose I am writing an expression x plus 1. So how you can define this expression into a statement? So one way I am writing is 1 more than x. No, 1 more than a number. Today we will not use x, we will use a number. Okay? Yes, sir. What is the other way? Tell me, Anvita. Sir, the sum of x and 1. Okay, sum of a number and 1. Oh, yes, sir. A number and 1. You tell me, Vihan, what is the other way? Yes, sir. मेरे साथ लिखते भी जाना. A number is increased by 1. okay. और बताओ दक्ष. ऐसी इंक्रीज बाय लिख दिया. हाँ दक्ष, क्या बोल रहे हो? सर आपने ऐसी इंक्रीज्ड बाय 1 लिख दिया. ए नंबर लिखा है बेटा. ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1. एक्स मतलब ए नंबर है ना. एक्स तो कोई भी एक नंबर हो सकता है. ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1. और क्या बोल सकते हैं? सर अ नंबर इज एडेड अपॉन 1. वेरी गुड. वेरी गुड. बहुत सारे तरीके हैं. ओके, अब मुझे बताओ अनविता, हाउ वी कैन से दिस 2x minus 3. Sir, a number multiplied by 2 and subtracted by 3. No, subtracted no. 3 is subtracted from the product. Oh, yes, sir. In case of subtraction, we use from word. So a number is, we can say, doubled as well. Yes, sir. And 3 is subtracted from the product. And 3 And is, taken away from the product. yes. So Vihan is telling a number is multiplied by 2 and 3 is टेकन अवे. taken away. सर दक्ष बोल रहा हूँ. अरे वाह दक्ष, फ्रॉम द प्रोडक्ट. दक्ष तैयारी करके आया इस बार. हाँ सर, लास्ट बैंड बज गया था. चलो विहान बताओ, और क्या बोल सकते हैं? और ए नंबर इज डबल्ड. a number is doubled and reduced by या decreased by. sir, yes. बोलो बोलो बोलो. सर मैं वही बोल रहा था, decreased. ठीक है, लिख लो इसको. सबने लिख लिया तो आगे सर मैं बढ़ते. एक सेकंड कॉपी और पेन फेच करूँ. मैंने एक्चुअली हड़बड़ के चक्कर में लेके. कोई बात नहीं बेटा, आप ले आओ. कॉपी पेन ले आओ. आई एम जस्ट गिविंग यू 30 seconds, नॉट मोर देन दैट. टाइमर भी ऑन करता हूँ. मेरा टाइमर किधर गया? ओके, 5 सेकंड हो चुके हैं, तो और 20 सेकंड मिलेंगे. तब तक ये लिख भी लो साथ में बाकी लोग. फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. बैलेंस स्केल की कहानी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी. आई होप कि सबको याद है. अन्विता, Yes, sir. हाउ टू यूज द बैलेंस स्केल? ओके,
So like if it's like equal, like for example x is equal to 1, then and you put x on this one side of the scale and 1 on the other side, then it will be balanced. But if you put 2, then the 2 will be heavier and it will go down, the x will Yes. be Yes. Yes. Daksh, are you back? Yes, sir. वेरी गुड. बहुत टाइम मिल गया. ओके, चलो लेट्स हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं. सर मैं आफ्टर क्लास बैठ के और कॉपी करना पड़ेगा, स्टार्टिंग का एकदम मिस हो गया. कोई बात नहीं बेटा, मैं क्लास के बाद नोट्स भेज दूंगा, डोंट वरी. थैंक यू सर. Sir, where do you post the notes? बेटा अब मैं Because नोट्स भेजता हूँ पर आपका नंबर ही नहीं है मेरे पास, आप मुझे कॉल ही नहीं करते हो. there, okay sir, sorry sir. मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ, तो जिसका व्हाट्सएप है उसी पे कर पाता हूँ, तुम्हारा व्हाट्सएप है ही नहीं. सर आप उसमें कर दीजिए ना, अर्बन प्रो में नोट्स नहीं शेयर कर सकते. ओके, अर्बन प्रो पे कर दूंगा, तो तुम लोग देख लोगे ना अपने आप ध्यान से. यस सर, हम लोग अर्बन प्रो पे तो देख ही सकते हैं. मैं अर्बन प्रो पे Because अपलोड कर दूंगा. ठीक है, अर्बन प्रो पे क्लास के नोट्स में डाल दूंगा. हाँ ठीक सर, है, जितने भी नोट्स हुए ना अभी तक सर सब अपलोड कर दीजिएगा. मैं बीच बीच में थोड़ा छूटा है तो. ठीक है. सारे तो नहीं है पर आज से करना शुरू करूंगा. ठीक है, अभी तक मैंने बनाए भी नहीं थे, मैं और भूल गया जितने था. पीछे सर के अगर है तो भेज दीजिएगा. ठीक है, मेरे बोलो. पास आप जहाँ तक कुछ भेजे हैं. ठीक है, बोलो. सर एक्चुअली टीचर ने ये नोट्स दे दिए हमको ऑलरेडी, कौन से टीचर ने? मेरे स्कूल वाले टीचर ने. अच्छा, अरे मैं अपने नोट्स की बात कर रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ. अच्छा वो, हाँ. मुझे लगा कि ये कॉपी नहीं एनसीईआरटी का. नहीं नहीं. चलो ठीक है, तो हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया. व्हाट इज एलएचएस वी नो, व्हाट इज इक्वालिटी साइन वी नो, व्हाट इज एन इक्वेशन वी नो. इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन एन एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑन ए वेरिएबल. ओके, अब जो जो बोलता जाऊंगा लिखते जाना फटाफट से. ठीक है, ये बैलेंस स्केल की कहानी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको. फाइंड द सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3. तो आई टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस यूजिंग द ट्रांसपोज मेथड. मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था व्हाट इज ट्रांसपोजिंग. जब भी Yes, कोई sir. प्लस या नेगेटिव साइन है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वो इक्वेशन के दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन. अगर कोई मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा. क्लियर है? सर 5 इज द आंसर. हाँ ठीक है. अब हम चलते हैं सीधे उन क्वेश्चंस पे. ये वाले क्वेश्चंस करते हैं. सॉल्व x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. मैं लिख लेता हूँ. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, सब लोग पहले देख लो और उसके बाद से इसको करना शुरू करना. सो देर आर 2 ways ऑफ सॉल्विंग इट. एनीबडी वांट्स टू सजेस्ट एनी वे? कोई बोलेगा सर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ. यस सर. बताओ कैसे करेंगे. चलो आप ही बताओ सबसे पहले. व्हाट इज द फर्स्ट? ट्रांसपोजिंग मेथड. ट्रांसपोजिंग क्या करोगे आप? x/3 x/3 और फिर इज इक्वल्स टू -3/2 -5/2. ओके, सो x/3 इज इक्वल टू -3 -5 कितना हो जाएगा? -8/2. सो x विल बी इक्वल टू -8/2 इंटू 3. 3. So x is equal to -12. Clear है? Anybody having any doubt? नो सर, नो डाउट. Okay. सर ये हम लोग लिख ले. हाँ, और ओके सर. second way of solving the same kind of question. अन्विता देखते रहना. This is Yes, the sir. first step. In the second step, I am going to take the LCM. So LCM is going to be 3 into 2 because both are co-prime numbers. So it will become 2x plus 10 plus 15. Okay, 5 into 3 is 15, which is equal to -3/2. I will cancel this 2 and this 2. Please remember this. When on the equality sign, if we have the same number on both the ends, suppose we have the same numerator and same numerator, we can cancel them. If we have the same denominator also, we can cancel them. Okay. Now 2x plus 15 will be equal to 3 will go on the other side, so it will be equal to -3 into 3, which is equal to -9. So 2x is equal to -15 minus 9. X will be equal to -24 divided by 2, which is equal to -12. You can choose any of these methods, but you can see that this method is a very shorter method because
Why it is shorter? This is shorter because of this 2. Okay, अगर यहाँ पे same 2 नहीं होता then it would have been a different story. We will come to see more questions like this. Okay, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा. You can choose whatever method you want. Done? Yes, sir. Done. Okay. Yes, sir. Okay. Moving on to the next question. Example 4. Okay. Now there is a catch in this particular question. Okay. Let's understand what is that catch. Example 4. You have to solve for 15 by 4 minus 7x is equal to 9. So again, how you are going to solve it? Tell me. Sir, transposing method again. ट्रांसपोज मेथड. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट स्टेप में तो क्वेश्चन को ही लिखेंगे. 15/4 minus 7x is equals to 9. इज इक्वल टू 9. सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? फिर सेकेंड स्टेप में 7x minus 7x वहाँ पे लिखेंगे is equals to 9 minus 15/4. ओके. थर्ड स्टेप में minus 7x is equals to और फिर ये कर एलसीएम ले लेंगे. सबट्रैक्ट करेंगे. यस सर. तो माइनस 7x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 हो गया. 36 माइनस 15 इज हाउ मच? 21. सो x इज इक्वल टू, सर इसको वापस से दूसरे आई साइड कैन कैंसिल हियर 7 into 1 7 into 3. सो x इज इक्वल टू माइनस 3/4. ऑल राइट. लेकिन सर अगर मल्टीप्लिकेशन है जैसे कि यहाँ पे 7 है, अगर हम लोगों को उसको इक्वल्स के दूसरे साइड लेना है कैसे लेंगे? समझा नहीं, फिर से बोलो. क्वेश्चन दो. मतलब यहाँ पे 7x है और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे 21/4 है, तो फिर वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होएगा कि ऊपर मल्टीप्लाई होएगा न्यूमरेटर में? ये बेटा 7 और 21 दोनों सेम फैक्टर से डिवाइड हो जाएंगे. 7 1 जा 7 3 जा. अच्छा, मतलब वो डिनोमिनेटर में जाएगा. बेटा ये यहाँ से इधर नीचे जाएगा ना. मैंने आपसे अच्छा, फिर से got बोला it. कि अगर बैलेंस स्केल मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को अगर आप देखते हो तो अगर दोनों नंबर सेम न्यूमरेटर में है तो यू कैन कैंसिल देम. इफ यू गेट द सेम नंबर इन द सेम डिनोमिनेटर देन यू कैन कैंसिल देम. बट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैंसिल तभी कर सकते हो जब वो सेम साइड पे हो. अगर 21/7 कैंसिल करना है तो ये ऊपर नीचे कैंसिल होता है. लेकिन अगर 7 लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में भी 21 है तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. ओके सर, गॉट इट. किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर. No, sir. अब मैं यहाँ पे एक मेथड बताना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल मेथड है. और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देर आर चांसेस ऑफ लेस मिस्टेक. द मेथड दैट विच आई चूज थ्रू आउट माई होल लाइफ. माई मेथड इज टू ऑलवेज मेक द वेरिएबल पॉजिटिव. The variable should be positive. Okay, so this is what I do. Even if you want to go with my way, that's okay. If you want to do the way that this has been taught, you can do that way as well. Both are correct, but I don't take risk in my life. Okay, so what is the first step that I am going to do is, so my way is to make this part as a positive. Why? Because this is negative. I don't like negative variables. So what I'll do is, rather than taking 15/4 on the right hand side, I will bring 9 on the left hand side and take 7x on the right hand side. So this will be equal to 15/4 minus 9, which is equal to 7x. Alright. Now next step is, my next step is to change this thing. Okay, please understand this thing. My next step is to, this is known as interchangeable. This is allowed. So I can write 7x is equal to 15/4 minus 9. Are you getting it? Yes sir. किसी को confusion तो नहीं हो रहा? Now this is a very this is a kind of risk only, but if you get it then you will not make mistakes. So now because I want to see the variable positive, number 1. Number 2, I want to see the variable on the left hand side. These two things that I like. I do it that way. So 7x is equal to, I can take the LCM now, it will become 4. The LCM is 4 because 9 is 9/1. LCM of 4 and 1 is 4.
So 15 minus 36. So 7x is equal to minus 21 by 4. So x is equal to minus 3 by 4. Alright. This method is chosen by me. You all can decide which way you want to go. I don't want to take risk with the negative variable. I may forget to change this variable, this negative part to here. So I always wanted the variable should be kept positive and it should be kept on the left hand side. Okay, so the whole LHS has been put on to the right RHS and RHS has been put on to the LHS. This is known as interchangeable. This is allowed. Anybody having any doubt? No, sir. No doubt, Anvita? Daksh? No, sir. Okay. Moving on to the next question, exercise 2.1. अब यहीं पे खड़े खड़े मैं चाहूँगा कि आंसर मुझे बताता जाए. सबसे पहले का आंसर मुझे कौन बताएगा? देखते हैं कौन बताता है. सब लोग चालू हो Sir, it's जाओ. 9. x इज इक्वल टू 9. दूसरे का बताओ क्या आएगा? Sir, it's 7. वेरी गुड. समझ में आ रहा है सबको कैसे 7 हुआ? 10 माइनस 3. 3 इधर चला गया. नेक्स्ट का बताओ. Sir, Sir, it is it's 4. 4. वेरी गुड. नेक्स्ट का बताओ. Sir, it's 14 Sir, by it is 7, 20. which is 1 by... इट Sir, इज it 2 is बेटा. 20. इट इज 2. 17 sir? बाई 7 माइनस 3 बाई 7. तो 17 माइनस 3 कितना होता है? 14 ओ बाई माइनस हो जाएगा, मैंने ऐड 14 किया. by 7. It's 2. ऑल राइट. दक्ष समझ में आ रहा है? Sir, it is 2. The second, the fifth बड़े one. अच्छे से समझ में आ रहा है. Yes, sir. So it's fifth 2. one. सिक्स का बताओ क्या होगा? Sir, it's 50. Sir, it is 2. 5 इंटू 10 इज 50. ओ पागल और into. बेटा, अगर ये 5t होता तब इसको 2 बोलते. मैंने बोला अगर ऊपर न्यूमरेटर है इधर भी न्यूमरेटर है तभी कैंसिल होगा. ठीक है अगर नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके सर. चलो इसका क्या होगा? 2 1 जा 2 9 जा और 9 3 जा कितना होता है? 27. Sir, 27. 15 इंटू 16 कितना होता है? बताओ. इसका आंसर कौन पहले बताएगा? देखते हैं. 15 into 16. अरे डेसिमल में आएगा आंसर. हाँ सर. इसलिए बोलता हूँ टेबल याद करो. 15 इंटू 6 इज 90. 0 9 कैरी. 15 इंटू 1 इज 15 प्लस 9 24. 2 डेसिमल लगा दिया. 2.4. क्लियर है? Yes, sir. यस सर. इसमें बताओ क्या होगा आंसर? ऐसे ही देख के बता दो. 9 इधर जाएगा तो 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25. और डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा तो आंसर क्या होगा? 25 बाई. 25 by 7. सर डेसिमल में है आंसर. डेसिमल में निकालना ही नहीं है. अरे जबरदस्ती. डेसिमल में नहीं निकालना है. जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में निकालते हैं. बताओ व्हाट इज द आंसर फॉर दिस. देखते हैं कौन पहले बताता है. दक्ष आप बताओ बेटा. Sir, it's actually 3 by 2. वेरी गुड. तो 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8. सो y इज इक्वल टू 21 बाई 14. 7 3 जा 7 2 जा. दक्ष बेटा समझ में आ रहा है? यस सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 बताओ क्या होगा? Sir, it's minus 8 by 6, which is actually minus 4 by 3. वेरी गुड. 17 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 हो जाएगा. 2 3 जा 2 4 जा तो माइनस 4 बाई 3. क्वेश्चन नंबर 12 बताओ क्या होगा? Sir, it's minus 8 by 5. ओके. माइनस 8 बाई 5. ओके चलो देखते हैं. तो x बाई 3 इज इक्वल टू 7 बाई 15 माइनस 15 बाई 15. सो x बाई 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 15 इज माइनस 8 बाई 15. 3 इंटू 1 3 इंटू 5. वेरी गुड बेटा. अन्विता इज द टॉपर ऑफ दिस क्लास. कमाल कर दिया. शाबाश अन्विता. दक्ष बेटा समझ में आ गया? विहान
यस सर। आगे बढ़े। यस Okay. Some applications. We begin with a simple example. Sum of two number is 74. One of the number is 10 more than the other. ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस को कैसे करते हैं? सो वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर. 10 मोर का मतलब क्या बताया था मैंने? 10 ज्यादा है। प्लस 10. ज़्यादा. मोर मतलब प्लस 10. सो इफ वन नंबर इज x, द अनदर नंबर इज x plus 10. 10. So sum of the two numbers is 74. So how the equation will be formed? So 2x is X 74. plus 10 is equal to 74. 2x plus 10 is equal 2x to is equal to 64, x is equal to 32. All right? Yes, sir. तो अब सॉल्व कर लोगे इस तरीके से, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो एक नंबर 32 है. ओके, अब आते हैं ये अच्छे वाले क्वेश्चंस पे. ठीक है, सो लेट्स डू एग्जाम्पल 5. अभी तक ऐसा है कोई जो कर चुका है ऑलरेडी और बोल रहा है सर मैं बोर हो रहा हूँ? नहीं सर। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 5 शुरू करते हैं. What should be added to twice of a rational number minus 7/3 to get 3/7? देखो इक्वेशन कैसे बनती है. सबसे पहले to get 3/7 means is equal to 3/7. Okay, to get 3/7 means is equal to 3/7. What should be added means we are going to add something. What should be added? We don't know what has to be added, so that particular thing has to be written as x. Twice of a rational number minus 7/3. So what is twice of a number means you have to multiply it by 2. So we are multiplying it by 2 into minus 7/3. But we have to write the first step. Let the number be x. So here the equation will form. Understood? सबको समझ में आ रहा है? उसी सेंटेंस में से मैंने इक्वेशन कैसे निकाली. सबसे पहले टू गेट 3/7 पार्ट हमें ये बता रहा है कि इज इक्वल टू 3/7. ट्वाइस ऑफ ए रैशनल नंबर इज टेलिंग अस दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाई 2. एंड व्हाट शुड बी एडेड मीन्स वी डोंट नो द नंबर, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट इट एज x. सो द इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू 3/7. ये यहाँ माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस. 2 into 7 will become 14/3. Now x is equal to 7 into 3, both are co-prime numbers, so that is LCM is 21. 3 into 3 is 9, 14 into 7 is 98. So they are going to be 107 divided by 21. Is it clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. ओके, विहान समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर आपने एक Yes, चीज sir. ध्यान नहीं दी होगी, दैट द ऑपरेशन ऑफ 14 into 7 I have done in a very quick manner. I got it as 98. So that's why I told all of you to remember the table up to 19. Okay? किसी को नहीं याद हो रही, they can call me. I can tell you the trick how to learn the any multiplication table. कोई भी मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे याद करनी है, I will tell you in just 5 to 10 minutes. So hardly you will take not more than an hour to remember all the tables up to 19. किसी को भी प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो, मैं आज की क्लास में भी 5 मिनट लेके समझा दूंगा. ठीक है, चलिए, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा आंसर भी यही आया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकंड. द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है, यू ऑलवेज हैव टू मेक द रेक्टेंगल. फिगर हमेशा बनानी है ए बी सी डी. ओके, कितना है पेरीमीटर? पेरीमीटर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग गिवन. इट्स विड्थ इज 2/2 3/4 सेंटीमीटर.
विड्थ कितनी है उसकी 2 3/4. सो 2 3/4 कैन बी रिटन एज हाउ मच? टेल मी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 11/4 सेंटीमीटर. ओके, यू आर गोइंग टू फाइंड दिस लेंथ. हमें इसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है. सबको समझ में आ रहा है क्या? अन्विता Yes, sir. एंड दक्ष, आर यू गेटिंग इट बेटा, बोथ ऑफ यू? दक्ष बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. हाँ सर समझा. ओके, सो व्हाट इज लेट द लेंथ बी? जो भी चीज पूछी जा रही है हम उसको लिखेंगे लेट द लेंथ बी. एक्स भी मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं. क्या मान ले बताओ? एल मान लें. ओके, बी इज इक्वल टू हाउ मच? 11/4 सेंटीमीटर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर? 2 टाइम्स, मैं टाइमर भी ऑन करता हूँ, देखते हैं कितनी देर में लिखते हैं. 2 टाइम्स एल प्लस बी. सो दैट मीन्स 13 is equal to 2 times L plus what is B? 11/4. So first we will take 2 on the left hand side. So this will become 13/2 is equal to L plus 11/4. Now I will take 11/4 on the left hand side and I will write L on the left hand side. So L is equal to 13/2 minus 11/4. ध्यान से समझो, एक स्टेप मैं इसमें जंप कर गया हूँ. यहाँ से जो अगला स्टेप था वो मैं लिखना था मुझे 13/2 माइनस 11/4 इज इक्वल टू एल, और फिर मैं एल को लेफ्ट में ले गया और इसको राइट में ले गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन ए सिंगल स्टेप. आई एम टेकिंग इन ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एंड टेकिंग फर्स्ट आई टुक 11/4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन आई इंटरचेंज देम. सो एल विल बी इक्वल टू, द एलसीएम इज 4. 13 into 2 is 26 minus 11. So L is equal to how much? 26 minus 11 is how much? 15/4. Now since the breadth was given in the mixed fraction, so length will be also be given in the sorry, mixed fraction. So 4 into 3 is 12 and 12 plus 3 is 15. So 3/4 centimeter. Any doubt? No, sir. अन्विता, दक्ष बेटा, No, sir, no doubt. क्लियर है? यस सर. ओके, सो कितना आंसर आया था? 3/4. सही आंसर है. ओके, अच्छा, जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे हम एक स्पेशल मेंशन कर देंगे. प्लीज मेक ए स्टार एंड राइट. Whenever there is a question related with age, okay, always take the present age as x. present age को हमेशा क्या मानना है? x. पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. और ये क्वेश्चन मेरे लिए अन्विता पढ़ेगी. अन्विता विल रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन वी विल फॉर्म द आंसर एंड विल सी व्हाट शुड बी द अप्रोच टू गो टुवर्ड्स द आंसर. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Everybody have written? Whenever there is a question related with age, always take the present age as x. मिटा दूं इसे? हे, क्या मैं इसे मिटा दूं? Yes, sir. दक्ष बेटा, क्या मिटा दिया जाए इसको? यस सर. कैन यू प्लीज रिपीट? क्या इसे मैं मिटा सकता हूं? यस सर. ओके, तो अगला सवाल है अन्विता के लिए. ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे. अन्विता, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू एवरीबडी? So the percentage of Sahil's mother is 3 times the percentage of Sahil
after 5 years, their age will add to 66 years to find their present ages. Okay. So in this, his age is X and his mother's age in present time, both of them in present time, is 3X. Okay, Anvita, please. What happened was your sound was not that much clear to us, so we didn't get you. Okay, so it's okay. Let me clear this from my end. I think that what you were telling was already correct, but let me explain because the sound was not coming properly from your end. I think there is a problem with your mic, I think, or the distance between you and your mic. Okay. So the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. Now if I ask all of you, can you tell me who is elder, Sahil or his mother? So Sahil's mother. Sahil's mother is always elder. Okay. Now whenever we are solving a question, our approach should be that there are two kinds of variables. Okay. Let me tell you that there are two kinds of variable. One is dependent variable, one is dependent variable, and one is independent variable. Okay. Now I will explain what is the difference between a dependent variable and independent variable. Suppose I am giving a statement that Sudhanshu is a tutor of Vihan. This is one statement. Okay. The other statement is Vihan is a student of Sudhanshu. Now both the statements reflect the same thing only. Is there any difference? No, sir. The relationship between Sudhanshu and Vihan is same. Let it Sudhanshu is a tutor of Vihan and Vihan is a student of Sudhanshu. Both reflect the same meaning. But what is the difference? In the first case, we are comparing Sudhanshu with respect to Vihan. So we are talking about Vihan we are talking about Sudhanshu with respect to Vihan. So Vihan is independent now and Sudhanshu is dependent on Vihan. Alright? In the second case, Sudhanshu is independent person and Vihan is dependent on Sudhanshu. Are you getting it? Yes, sir. Dependent and independent समझ में आ रहा है? Okay. Now reading to that first part of the question. The present age of Sahil mother is 3 times the present age of Sahil. So suppose I write Sahil's mother by SM and I am writing Sahil here. So can you tell me who is dependent on whom? Is Sahil dependent on Sahil's mother or Sahil mother is dependent on Sahil? So Sahil's mother is dependent on Sahil. Because the information is giving about Sahil's mother with respect to Sahil. So I will take Sahil's age as X, present age as X. Always take the independent variable as X and dependent variable will be done as per the question's demands. So in this case, as we understand from the first line of the question, that let the present age of Sahil, write down, let the present age of Sahil be X years. Okay, therefore, the second step is therefore now we are going to mark the independent variable. Therefore, Sahil's mother's age is equal to 3 times means 3x years. Alright. After 5 years, what will be Sahil's age? So Sahil's age after 5 years, how much he will be? X plus 5 years. Whatever is your present age after 5 years, you will be 5 years more. That's it. Therefore, no, not therefore now. Sahil's mother age after 5 years. Sahil's mother's age after 5 years is how much? 3x plus
5. All right. Now in the second part of the question they are telling that after 5 years their age will add up to 66 years. So add to how much? 66 years. And after 5 if I need to add both of their ages, so x plus 5 plus 3x plus 5 is equal to 66. So 3x plus x will become 4x and 5 plus 5 will become 10, and when you will take on the other side it will be minus 10. So x will be equal to 56 divided by 4, which is equal to 14 years. Now don't run away after finding that you have got x. X is not the answer. Now again read the question what is being asked. The question is asked find their present age. So what we will write? We will write Sahil's age, present age, is equal to x is equal to 14 years. And second is Sahil's mother's present age is equal to 3 times x, which is equal to 3 times 14 is equal to 42 years. Is that clear to everybody? How much time Yes, I took? sir. Hardly 3 minutes. If I read the question, understand in 30 seconds, the rest 2.5 minutes I will just solve it. So this question is at least of 2 marks. At least of 2 marks. So you will get 4 minutes to solve this question. And we have solved in just 2.5 minutes by explaining you as well. Alright, so you will have enough time to solve such kind of questions. Written? Yes, sir. Okay, shall we move on to the next question? Yes, sir. Okay. Okay, question number 8 now. Let's understand the question number 8. So Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? Okay. So first we will understand what is the difference between the denomination and what is the difference between the actual amount. Okay. People may confuse, students get confused in the actual amount and the denomination. So suppose I have one 5 rupee coin. Suppose I have one 5 rupee coin. So how much money I have? Okay, this is coin. If I have 2 5 rupee coin, how much money I have? If I have 3 5 rupee coin, how much money I will have? अरे कोई तो बोलो. 3 5 rupee coin, 15 rupees. 15 rupees. Okay. So my next question is to Anvita. Suppose I have 2 500 rupee coin. How much money I have? So 1,000 rupees. So 1000 is the amount. This is known as the amount. Okay. And this is known as the number of denomination. This is known as the number of denomination. So please understand the number of denomination does not represent the actual amount. It helps us to calculate the actual amount by multiplying that number with the single amount. Are you getting it? ये अमाउंट और नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस का अंतर समझ में आया? Yes, sir. Okay. So Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coin. Now which is a dependent variable and which is independent variable? Tell me. 5 rupee coin dependent है कि 2 rupee coin dependent है? 2 rupee coin is dependent. Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coin. तो 3 times as many 2 rupee coin यानी 2 rupee coins जो है डिपेंडेंट है किस पे है? 5 rupee coins पे. तो 5 rupee coins क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. सो वी विल राइट लेट द नंबर ऑफ, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूँ, लेट द नंबर ऑफ 5 rupee coin is equal to x. Therefore the number of, अब डिपेंडेंट वेरिएबल की कहानी therefore करके लिखी जाती है. द नंबर ऑफ
2 rupee coin is equal to 3 times, means 3x. Okay, if he has in all the sum of rupees 77, so amount कितना है उसके पास 77. तो अगर x रुपये 5 रुपीज़ के कॉइन उसके पास x हैं तो टोटल अमाउंट कितना होगा 5x. ओके, 2 रुपीज़ के कॉइन अगर उसके पास 3x है तो टोटल अमाउंट कितना होगा 2 इंटू 3x. सो वी विल हैव 5x प्लस 3 इंटू 2 6x इज इक्वल टू 77. सो 11x इज इक्वल टू 77, x इज इक्वल टू 7. यहाँ से खुश नहीं हो जाना कि आंसर आ गया भाग जाओ, ऐसे आर्किमिडीज की तरह नहीं चिल्लाना. अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ना है. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव. सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्या था, x क्या बना था 5 रुपये कॉइन. 5 रुपये कॉइन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. इसको हाईलाइट कर दो, इसको हाईलाइट कर दो. ओके, कितना मिनट लगा 1.5 मिनट्स. 30 सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ने में लगा दो, समझने में लगा दो. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, बहुत आराम से आप इक्वेशन लिख सकते हो. बहुत टाइम बच जाता है आपका. यू कैन सेव 2 मिनट्स इन दिस क्वेश्चन. सी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मिनट मिलेंगे, 2 मिनट में हो गया हमारा. लिख भी लिया, सबने लिख लिया. दक्ष बेटा समझ में आ रहा है. Yes, sir. विहान बेटा आपको समझ में आ रहा है. यस सर. मजा आ रहा है. हाँ सर. आगे बढ़े. यस सर. अरे अरे ओके. एग्जाम्पल 9 बहुत ही हलवा क्वेश्चन है. इसको पता है कैसे करते हैं हम लोग. सर पता है. ऐसे खा जाते हैं. हलवा खाया किसी ने. हाँ सर. ऐसे क्वेश्चन बहुत हलवा होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाता हूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. व्हेन यू आर गोइंग टू टेक कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स और कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, वन आफ्टर अनदर. ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, सो 2 and 3 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 and 4 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स. सपोज समबडी इज टेलिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो कैसे लेंगे हम लोग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेंगे 1 3 5 7 9 1 3 3 5. ओके, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेंगे तो 2 4 4 6 ऐसे लेंगे. लेकिन जब हम वेरिएबल्स में लेते हैं तो कैसे लेते हैं, वेरिएबल्स में कैसे लेते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, ध्यान से देखो. सो इन वेरिएबल्स कंसेक्यूटिव नंबर्स आर टेकन एज x and x plus 1. ऑल राइट. Suppose you are being asked to take 3 consecutive numbers. So 3 consecutive numbers can be taken x minus 1, x and x plus 1. Now you might be thinking, sir, can I take x, x plus 1 and x plus 2? Yes, you can take x, x plus 1 plus x plus 2. But if you are going to add these, this will get cancelled out and we will have a 3x, a simple equation to solve. In this we will have 3x plus 3 to solve. So it is easier to solve this. Okay, you can take any number, any number of your choice. So here also you are taking 3 consecutive multiples of 11. So please understand a multiple, how is being a multiple formed. So first multiple of 11 is 11 into 1, second multiple is 11 into 2, third multiple is 11 into 3. So these are 3 consecutive multiples, but we don't know what multiples are there to add it to 363. So what we can do is, first number we can take as x minus 1, second we can take as x, and third we can take as x plus 1. Any doubt in this? See, since it is a multiple of 11, so these are the, suppose these are the 3 numbers, 3 consecutive numbers, and that are being multiplied by 11. So we will get the 3 consecutive multiples of 11. Any doubt? We can also take 11x. No sir. No. We can also take 11x and 11x plus 11 and 11x plus 22. This also we can take. But it is easier to solve this kind of question. Okay, if we take the consecutive numbers as this. So what the question is telling, they add up to
363. So we can write, So sir, 11 x minus 1 and 11x plus 11x 11x plus plus 1 1. is equals to 363. Okay, so we will have 11x minus 11 plus 11x plus 11x plus 11. So 11 and minus 11 will get cancelled out, and 11x plus 11x plus 11x is going to be 33x is equal to 363. So we can cancel this 11 into 3, 11 into 3 and 11 into 3. Then 3 into 1, 3 into 11. So x is equal to 11. Okay. So what are the three numbers? मैंने टाइमर ऑन नहीं किया, सॉरी. सो थ्री नंबर, अभी x जान के खुश नहीं हो जाना है. सो थ्री नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर इज 11 times x minus 1. So it is 11 into 10, which is equal to 110. Second number is 11 into 11, which is equal to 121. Okay, the third number is 11 into 12, which is equal to 132. If you add them, you can check the answer. 2 plus 1 3, 3 to 5 plus 1 6, 3. So answer is correct. But ये वाला पार्ट नहीं करना, दिस इज टू चेक. सो दीज आर द थ्री आंसर्स. समझ में आ रहा है कि नहीं? अन्विता, आर यू गेटिंग इट डियर? Yes, sir. ओके, सी योर वॉइस इज सो स्वीट. ऐसा नहीं है कि विहान करेला खाता है, विहान की भी आवाज़ अच्छी है. दक्ष क्या खाता है? दक्ष लंच किया? हाँ सर, क्या खाया? दाल चावल खाया सर, लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था सर, लेकिन दाल चावल लंच में खाया बस. अच्छा, तो ब्रेकफास्ट में क्या अच्छा था? अभी वो था ट्रैवलिंग नहीं बोलना चाहिए. मैं आईटीसी रॉयल बंगाल में एक 1 नाइट स्टे के लिए गया था. अच्छा, घूमने गए थे? आज ही लौटा हूँ. अच्छा, अरे वाह. विहान, तुम्हारे स्कूल कब खत्म होंगे? सर अभी और 10 दिन में खत्म हो जाएंगे. और 10 दिन नहीं, सॉरी 28 को खत्म होंगे. कितना पढ़ा रहे हैं स्कूल वाले यार? फिर अभी समर हॉलीडेज तक रहेंगे, फिर वापस से टेस्ट होने वाला है. ओके, अन्विता डन बेटा? Yes, sir. ओके. ओके, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर हो गया. हमारा आंसर भी आ गया, 110, 121, 132. ओके, वाओ, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया. Let's see how to solve this question. The difference between two whole number is 66. Okay, so we don't know what are those whole number. The ratio of two number is 2:5. Okay, you know what is a ratio? So जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है, प्लीज राइट डाउन. Whenever the question involves ratio of m is to n is to o भी लिख लो, o नहीं p ले लो. Then take the values as mx, nx, px. चाहे 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो रेशियो में है उसी रेशियो में हम उसको मान लेंगे. लिख लो इस बात को. हो जाए तो फिर बताना मुझे, और फिर हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे. और क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, हम देखते हैं उसको. ये समझ में आ रहा है ना? किसी भी नंबर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2/5 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/2 से मल्टीप्लाई करके 4/10 भी हो सकता है ना, क्योंकि इनका भी तो रेशियो 2:5 ही है. इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3 is 6, 5 into 3 is 15. So again 6/15 is also a ratio of 2:5 only. Okay, but we don't know what is the actual numbers. Now we are going to find those actual numbers. Are you getting it? Ratio means the simplest form of those number is 2:5. So we can multiply each numerator and the denominator by x. Everybody getting that? If I multiply 2 into x and 5 into x,
So I can cancel x and x. So the ratio will remain 2:5 only. So what what I said is, whenever the question involves any ratio, then you have to take the values as same multiplied by x. All right. So in this question, what we are going to take? Let the two numbers be. कोई टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ. Let the two numbers be. 2x and 5x. Very good. Let the two numbers be, please write down with me, be 2x and 5x. Now the bigger number is what? 5x. It is but obvious that the bigger number is 5x. So the difference between two whole number is, so we will write 5x minus 2x. Difference means you have to subtract, is equal to 66. So 3x is equal to 66. x is equal to 22. x पाके उछलना नहीं है. फिर क्वेश्चन पढ़ना दोबारा. Find the two numbers. So the first number is, therefore first number is 44, sir. wonderful dear. And second number is 110. 22 into 5. 1 मिनट लगा क्वेश्चन करने में. 1 मिनट समझने के लिए लो. 2 मिनट से ऊपर का सवाल नहीं है. तो क्या दक्ष को समझ में आया? कोई तो बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर. दक्ष क्लास में है कि गायब हो गया है? लिख लिया सबने? सर यहीं पे ओके, लिख लो. क्या समझ में नहीं आया कि लिखा नहीं? लिख लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन वही क्या? बोलो दक्ष बेटा. देखो फ्री हो, क्लास में सब लोग पढ़ रहे हैं. आप अच्छा पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका? कैसे क्या बोल रहे हो? हो गया सर? हो गया. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. आज हमने 11 क्वेश्चन कर दिए. मजा आ गया भाई. और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस पे लिख दो IMP. क्या लिख दे इस पे? IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया. देवशी हैज ए टोटल ऑफ ₹590. यानी अमाउंट कितना है उसके पास टोटल? 590. 590 सर. ₹590. As a currency notes in the denominations of ₹50, ₹20 and ₹10. The ratio of the number of ₹50 notes and ₹20 notes is 3:5. जैसे ही रेशियो दिख जाता है, नंबर की बात हो रही है. सो वी विल राइट, लेट, टाइमर ऑन कर देता हूँ, लेट द नंबर ऑफ, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का याद रखना, 6 मिनट मिलेंगे. लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स. सर ₹50 5x. हाँ 3x. 3x कैसे सर? बेटा 50 नोट्स एंड ₹20 नोट्स का रेशियो 3:5 दिया हुआ है. अच्छा सर, गॉट इट. So let the number of ₹50 notes is equal to 3x and the number of ₹20 notes is 5x is equal to 5x. Okay. मतलब ₹20 नोट्स जो है वो ज्यादा है उसके पास. हाँ 5 है, 5 गुना है. मतलब जो रेशियो है वो 3:5 है. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? तो 50 रुपीज़ के नोट उसने दिख लिए, 20 रुपीज़ के नोट्स लिख दिए, 10 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे बताओ? देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹10 नोट कितने होंगे? टोटल नोट्स कितने हैं? 25. नहीं, टोटल नोट्स 25 हैं. देखो यहाँ पे. तो 25 में से 10 रुपीज़ के नोट और 50 रुपीज़ के नोट माइनस कर दोगे तो बाकी बचे जो नोट होंगे वो 50 रुपीज़ के नोट और 20 रुपीज़ के नोट, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 25 यू विल गेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर. मान लो 10 रुपये के सिक्के मेरे पास 3 है, पर मुझे पता नहीं है कितने. 20 रुपये के सिक्के मेरे पास
₹20 की नोट मान लो मेरे पास 10 है, और क्या बोलते हैं ₹50 की नोट मेरे पास 5 क्या बोलते हैं 10 3 13 12 है। तो अगर मुझे ये दोनों पता चल गए और मुझे टोटल पता है कि 25 है, तो ये कैसे निकलेगा? 25 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करूंगा ना। अन्विता, आर यू गेटिंग इट बेटा? Yes, sir. सो टोटल नोट्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में? 25। 25 यहाँ पे लिखा है इफ शी हैज टोटल ऑफ 25 नोट्स, सो टोटल नोट्स इज 25। सो 50 और 20 नोट्स को हमने 3x एंड 5x मान लिया, तो ₹10 की नोट क्या होंगे? 25 में से 3x प्लस 5x को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो अब पूछ रहा है कि टोटल डिनोमिनेशन कितने हैं, तो टोटल अमाउंट कितना है उसके पास? 590। मैंने क्या बोला था कि किसी भी डिनोमिनेशन का अमाउंट बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई दैट नंबर। सो व्हाट इज द अमाउंट दैट इज बीइंग होल्ड बाई ₹50 50 note? So it is 50 into 3x. This is the amount by ₹50 note. Now the amount by ₹20 note is 20 into 5x, and the amount by ₹10 note is 10 into 25 minus 8x. यहाँ तक कोई सबको क्लियर है? एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 590. एनी डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। कि इक्वेशन कैसे आई? दक्ष बेटा समझ में आया? ₹50 की नोट 3x थी आपके पास, ₹20 की नोट 5x थी, और ₹10 की नोट 25 माइनस 8x थी। ₹10 की नोट 25 माइनस 8x कैसे आया? टोटल नोट्स 25 थी, उसमें से हमने 50 और ₹20 की नोट को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ₹10 की बाकी नोट आ गई। यहाँ से अब मल्टीप्लाई करेंगे। 50 इंटू 3 इज हाउ मच? 150। 20 इंटू 5 इज हाउ मच? 100x। यहाँ पे x नहीं लिखा मैंने। प्लस 10 इंटू 25 इज 250, 10 इंटू 8 इज 80x इज इक्वल टू 590। 250 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। सो 150, 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 इज 20, 150 प्लस 20 इज 170। ओके, 590 माइनस 250 कितना हो जाएगा? 340। सो x इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई 170। 0 से 0 कैंसिल, 17 इंटू 1 17 इंटू 2। सो x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 सोच के खुश नहीं हो जाना है, अभी आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो आंसर कैसे निकलेगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ, सबसे पहले किसकी नोट निकालनी है हमें? ₹50 नोट। ₹50 नोट इज इक्वल टू कितना है? 3x। 3x मीन्स 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 नोट्स। नंबर ऑफ ₹20 नोट कितना है? 5x। 5x यानी 5 इंटू 2 यानी 10, तो 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹10 नोट इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9। समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 मिनट लगे, और ये 3 नंबर का सवाल है, 6 मिनट मिलेंगे, मैंने बताया था। समझाने में टाइम लगा है, लेकिन करने में टाइम नहीं लगेगा, 4 मिनट में हो जाएगा ये सवाल। पर कब होगा? अगर पहले से किया हुआ होगा। एग्जाम में रिसर्च मारोगे नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? लिख लो सब लोग। फिर से समझ लो, देवसी के पास टोटल मनी ही हैज इज 590। उसके 3 प्रकार के नोट थे, ₹50 के नोट, ₹20 के, ₹10 के। 50 और ₹20 का जो रेशियो था वो था 3:5। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव थॉट दैट ₹50 नोट मान लो 3x थे, ₹20 नोट 5x थे, टोटल नोट्स थे 25। तो हमने ₹10 के नोट मान लिए कि 25 में से 3x प्लस 5x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 25 माइनस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 8x। तो हमने अब उसको अमाउंट में कन्वर्ट किया। जो डिनोमिनेशन से अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जितना अमाउंट का डिनोमिनेशन है उसको नंबर ऑफ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ₹50 के नोट 3x थे तो कितना हो गया? 150x। ₹20 के नोट 5x थे तो कितना हो गया? 100x।
₹10 की नोट 25 माइनस 8x, तो 250 माइनस 80x हो गया। 10 पहले 25 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 10 8x से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने इसको सॉल्व किया। सो 150 प्लस 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 170x, और 250 उधर ले गए तो हमारे पास आ गया 340। 170 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 2। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला x आंसर नहीं होता है, हमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़। एक स्टेप वापस जाना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन ने क्या बोला, ईच डिनोमिनेशन का अमाउंट बताना है। ₹50 के नोट कितने थे, 3x, तो 3 इंटू 2 6। ₹20 के नोट 5x, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, एंड ₹10 के नोट 25 माइनस दोनों को ऐड कर दिया 16, यानी कि 9 आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, देखें और कितने क्वेश्चन बच गए। एक्सरसाइज 2.2 होमवर्क है पूरी की पूरी, 16 के 16 क्वेश्चंस, और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना सब लोग। ठीक है, ठीक है सर। पूरी की पूरी 2.2। किसी के पास ये बुक नहीं है तो मैं उसमें अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करना सीखेंगे, जब दोनों तरफ वेरिएबल होता है, और फिर कोशिश रहेगी कि इस वीक में हम इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे। इसके बाद मुझे ये जानना है कि हम लोग साइंस स्टार्ट करें साथ में, या फिर इसी मैथ्स का ही 3rd चैप्टर लें। वैसे सभी सर मैथ्स का ही 3rd चैप्टर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि परसों 4 बजे जो क्लास होगी उसके पहले सब लोग मुझे अपना होमवर्क भेज देना। अगर क्लास किसी कारणवश नहीं होगी तो आपको मैसेज आएगा, नहीं तो क्लास तो होगी ही होगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मेरे यहाँ कुछ इमरजेंसी हो जाए तो मैं मैसेज डाल दूंगा कि क्लास नहीं होगी, लेकिन क्लास होनी ही है 4 बजे। अगर नहीं होती आप एक बार चेक कर लेना आधे घंटे पहले जाके कि क्लास है कि नहीं है। मैसेज देख लेना अर्बन प्रो पे, व्हाट्सएप पे, जिसका जो भी अवेलेबल है देख लेना। ठीक है, किसी को